अगर आपको अपना आत्मसम्मान चाहिए या आपको अपना आत्मसम्मान बचा के रखना है तो आपको आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। आज रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश धीरूभाई अंबानी ने प्रधानमंत्री मोदी की इन बातों का न सिर्फ दोहराया बल्कि ये वादा भी किया कि इसके लिए रिलायंस दोगुनी मेहनत करेगा। साथ में उन्होंने ये भी जोड़ा कि चुनौतियां इतनी बड़ी हैं कि सभी इंडस्ट्री को एक तरफ एकजुट होकर काम करना होगा। मुकेश अंबानी का यह बयान ऐसे समय में आया है जब भारत अमेरिका के बीच कारोबारी रिश्ते में थोड़ी सी खटास आ गई है। अमेरिका बार बार भारत के आत्मसम्मान को चुनौती दे रहा है। आत्मसम्मान के खातिर आत्मनिर्भरता के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने न सिर्फ बयान दिए बल्कि इस तरफ कई ऐलान भी किए। एक निवेशक होने के नाते इन ऐलानों को कैसे देखा जाए और ये ऐलान देश को आत्मनिर्भर बनाने में कितने कामयाब होंगे, आज आवाज अड्डा में करेंगे इसी पर चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और चर्चा में शामिल होंगे हमारे साथ विशेष मेहमान, मार्केट और इंडस्ट्री एक्सपर्ट हैं सुनील सुवर्णम साहब, पाइपर सेरिका के फाउंडर एंड फंड मैनेजर अभय अग्रवाल साहब, रोहा एसेट मैनेजर्स के हेड इक्विटी दलजीत सिंह कोहली साहब हैं और रक्सट कैपिटल के मैनेजिंग पार्टनर अभिषेक अग्रवाल साहब हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। आप लोगों से चर्चा की शुरुआत करूं, लेकिन पहले कुछ ऐलान देख लेते हैं क्या कुछ मुकेश धीरूभाई अंबानी ने रिलायंस के एजीएम में कहा है, फिर हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। India must gain greater economic strength and do so with a sense of urgency. Our Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, rightly exhorted us in his Independence Day speech that the yardstick of Atma Samman, self-respect, is Atmanirbharta, self-reliance. India must become self-reliant to the maximum extent in key technologies, critical industries, and other vital sectors of the global economy. Throughout our history, Reliance has contributed to this mission of building a strong India, a Balwan Bharat. I assure our respected Prime Minister that Reliance will follow his command with redoubled efforts, that the per capita income of Indians could rise 4 to 5 times within the next 2 decades, making India not just a prosperous nation, but also a more equal nation. And more importantly, India need not copy any foreign model. We have the ability and the responsibility to create an India-first model of development. This model will use deep tech to bring prosperity and security to India, improve the quality of life of each and every Indian, and protect the environment. This model will also harmonize technology with democracy, economy with culture, spirituality with science, and national aspirations with friendship across all nations. This is the collective dream of nearly 1.5 billion Indians to build a nation that leads with both prosperity and compassion. To announce the formation of a new wholly owned subsidiary of Reliance called Reliance Intelligence. This new company is conceived with 4 clear missions. 1, to house India's next generation AI infrastructure. Reliance Intelligence will build gigawatt scale AI-ready data centers powered by green energy and engineered for training and inference at national scale. Work has already begun on the gigawatt scale AI-ready data centers in Jamnagar. These facilities will be delivered in phases aligned to India's growing needs, powered by Reliance's new energy ecosystem and purpose-built for AI training and inference. 2, to house global partnerships. Reliance Intelligence will bring the world's best tech companies and open source communities together with Reliance's deep domain expertise and execution strength to deliver performance leadership, resilient supply, and India-first compliance for AI. 3, to build AI services for India. Reliance Intelligence will deliver trusted, easy-to-use AI services for consumers, small businesses, and enterprises, and solutions for sectors of national importance, such as education, healthcare, and agriculture.
reliable at scale and affordable for every Indian. And 4, to house talent for AI. Above all, Reliance Intelligence will create a home for world-class researchers, engineers, designers, and product builders, combining the speed of research with the rigor of engineering so that ideas become innovations and applications, providing solutions to India and the world. Today, it is my proud privilege to announce that Jio is making all arrangements to file for its IPO. We are aiming to list Jio by the first half of 2026, subject to all necessary approvals. I assure you that this will demonstrate that Jio is capable of creating the same quantum of value as our global counterparts. I am sure that it will be a very attractive opportunity for all investors. तो ये आप सुन रहे थे मुकेश धीरूभाई अंबानी को, जो कि रिलायंस एजीएम में बोल रहे थे। उनके कुछ स्पीच के कुछ हाइलाइट्स थे और इसकी शुरुआत करते हैं इस पे चर्चा की सुनील सुवर्णम साहब आपसे, कि ऐसे समय में मुकेश धीरूभाई अंबानी का ये सारे बयान आए हैं जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत सारी चुनौतियां रही हैं और उन्होंने साफ तौर से कहा कि हमें आत्मसम्मान के लिए आत्मनिर्भर होना पड़ेगा और रिलायंस इसके लिए दोगुनी मेहनत करेगा। तो स्पेसिफिक ऐलान जो किए गए उस पर मैं आगे चलकर के आऊँगा, लेकिन एक मोटा मोटी आप इससे क्या टेक अवे लेते हैं? ये एक हौसला बढ़ाने की काम है जो दिग्गज को लेना चाहिए। देखिए, लीडरशिप होता है, जैसे प्रधानमंत्री ने इंडिपेंडेंस स्पीच पे इस ऐलान को आत्मनिर्भरता और स्वराज का ये लिया था, वैसे ही मानते हैं कि रिलायंस आज सबसे दिग्गज कंपनी है जो सबसे ज्यादा वेल्थ क्रिएट किया है देशवासियों के लिए। तो उनके लीडर अगर ऐसे कहते हैं ना, तो उससे एक हौसला बढ़ता है। तो ये इम्पोर्टेंट है इस टाइम में जहां पे चुनौतियां ज्यादा है देश के ऊपर, और हम नए दोस्त, पुराने दोस्त तो कभी एनिमीज बन गए, पुराने एनिमीज अभी दोस्त बनेंगे। तो इस सिचुएशन में हौसला, मेरे ख्याल में वही एक पॉजिटिव ऑप्टिमिज्म वाली स्पीच जरूरत थी और उन्होंने वो दिया। आई थिंक बस एट दिस मोमेंट मैं यही कहना चाहूंगा। हाँ, बिल्कुल, ये एक ज़रूरत थी ऐसे मोमेंट पे कि एक हौसला बढ़े कि हमारे अंदर भी ताकत है, इंडस्ट्री एकजुट है इस चुनौतियों का सामना करने के लिए और इस तरफ हम आगे बढ़ेंगे। अभय अग्रवाल साहब। जी लक्ष्मण जी। हाँ, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे एजीएम में जो सारे आई थिंक एजीएम में जो उन्होंने कहा और उसके पहले भी जो कह रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि एजीएम में उन्होंने कोई नई बात कही। आई थिंक जो ग्रुप का फोकस है काफी समय से मैं देख रहा हूँ, वो बात करते रहे हैं नई टेक्नोलॉजी को अपनाने में, नए स्पेसेस में ऐसे एंटर करें जो फॉरवर्ड लुकिंग बिजनेसेस हैं, डीप टेक, डिफेंस टेक, सेमीकंडक्टर, एआई। तो पर ये एक बड़ा अच्छा मौका एक हमको मिल रहा है लक्ष्मण जी, क्योंकि मैंने देखा है कि जब भी देश एक किसी क्राइसिस से निकलता है, और एक मैं इसको इकोनॉमिक क्राइसिस कहूंगा, जो अभी यूएस ने हम पे टैरिफ लगा के क्रिएट किया है कि या तो आप घुटने टेक दीजिए अपने जैसे दूसरे देशों ने टेक दिए, या फिर आप टैरिफ ज्यादा दीजिए। तो आई थिंक जो हमारा स्टैंस है, अच्छी बात यह है कि पॉलिटिकल पार्टीज से लेके कॉर्पोरेट लीडर्स तक सबने एकजुट होके इसको सपोर्ट किया है। और मार्केट्स पे प्रेशर जो भी रहे, पर मुझे लगता है कि जैसे रिलायंस के चेयरमैन ने आज कहा और एक कमिटमेंट दिखाई कि नई टेक्नोलॉजीज की तरफ, मेरे लिए सबसे बड़ी बात थी जो उन्होंने अनाउंस किया, गीगावाट एआई जो डेटा सेंटर बनेगा, जिसके लिए अभी भी हमारी कंपनी जो है बाहर के डेटा सेंटर्स पे डिपेंडेंट है प्रोसेसिंग के लिए, तो वो हम इंडिया में कर पाएंगे। आई थिंक वही एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो ओवरऑल मैं कहूंगा बहुत पॉजिटिव है ये जो कमिटमेंट है, जॉइंट कमिटमेंट है बिटवीन कॉर्पोरेट सेक्टर लीडर्स एंड पॉलिटिकल लीडरशिप। अगर ये साथ में चल सके और हमारा कंजम्पशन मार्केट वैसे ही इतना बड़ा है, तो मुझे लगता नहीं कि हमें किसी भी टैरिफ से या किसी से भी डरने की जरूरत है। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी बात आपने कही। दलजीत सिंह कोहली साहब, एक निवेशक होने के नाते अगर हम इस एजीएम को देखें तो हमें सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट किस बात को लेकर होना चाहिए? जी लक्ष्मण जी, आई थिंक जो एक लीडर है वो अगर लीडर की तरह बिहेव करे तो बहुत अच्छा लगता है, और रिलायंस ने आज वही करके दिखाया है। ये एक कॉर्पोरेट लीडरशिप का जो रोल उनके पास है, उन्होंने आज वो बताया है। और जो ये न्यू एज टेक्नोलॉजी के बारे में पिछले 2-3 साल से लगातार बात कर रहे हैं,
उसमें काफी काम भी चल रहा है, न्यू एनर्जी के ऊपर भी काफी काम कर रहे हैं। अभी ये इंटेलिजेंस के बारे में, एआई के बारे में जो बात किया, आई थिंक अब आने वाला जो सेंचुरी है वो ये सब चीजों की ही है। और उसमें अगर कोई अपना बहुत बड़ा लीडर, कॉर्पोरेट लीडर, अगर वो उसमें लीड लेके और एक लीड बाय एग्जाम्पल जिसको कहते हैं वो करेगा, तो वो बाकी लोगों के लिए भी बहुत मोटिवेशनल होता है। और इन्वेस्टर्स के लिए तो ये एक अच्छा संकेत है ही कि हम जो हमारा सबसे बड़ा कंपनी है, वो एकदम आगे के बारे में सोच रहा है, तरक्की के बारे में सोच रहा है, जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसको अपना रहा है। क्योंकि नॉर्मली हमने देखा है कि जो बहुत बड़े बेहमत होते हैं, जो बहुत बड़े लीडर्स होते हैं ना, वो नॉर्मली बहुत स्लो होते हैं अडॉप्ट करने में, और रिलायंस ने उसको एकदम अपोजिट प्रूव किया है कि जो ऑयल कंपनी थी, जो ओल्ड एज कंपनी कह सकते हैं, कमोडिटी कंपनी, उससे कन्वर्ट करके एकदम न्यू एज कंपनी के बारे में बात करना, और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज, इनफैक्ट जो आने वाली अगले 10 साल 20 साल जो लीड करेंगी टेक्नोलॉजी, उसको अपनाना। तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा लीडिंग एग्जाम्पल है, और ये एक बहुत बड़ा केस स्टडी भी है कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए कि अगर आप चाहो तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन योर लीडरशिप। लीडरशिप ने बहुत अच्छे से ये दिखाया है, और मुझे लगता है कि इन्वेस्टर्स को ये बहुत पसंद आएगा। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा कि एक बहुत बड़ी कंपनी होती है तो आमतौर पे नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में, समय के हिसाब से बदलने में समय लगता है। चूँकि लगता है हम तो बहुत बड़े लीडर हैं, हम जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, हमें सामने वाला स्वीकार करेगा। लेकिन रिलायंस के साथ एक अच्छी बात ये रही कि सिर्फ अभी नहीं, समय के साथ, समय से पहले जो अपकमिंग टेक्नोलॉजी है, जो अपकमिंग ट्रेंड है, उसको बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेती है। यही वजह एक लीडर था और लीडर कंपनी बनी भी रही है और भविष्य में रहेगी, इस बात का दावा भी किया जा रहा है यहाँ पे। अभिषेक अग्रवाल साहब, मैं आपसे थोड़ा सा समझना चाहूँ मैं कि इस पूरे में एक इन्होंने जो ऐलान किया, जिसकी बात अभी दो पैनलिस्ट ने पहले किया कि एआई को लेकर बड़ा ऐलान हुआ, इस कंपनी को या फिर इस वर्टिकल को कैसे आप देख रहे हैं कि रिलायंस इंटेलिजेंस एक बनाने की बात की गई है, जहां पूरी दुनिया खासतौर से आईटी सेक्टर एआई से परेशान है और एआई को लेके तमाम तरह के आशंकाएं जताई जा रही थी कि नौकरी चली जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन एआई पर बहुत बड़ा फोकस किया जाएगा। इसको आप कैसे देख रहे हैं, इस ऐलान को? देखिए, मुझे लग रहा है जब भी रिलायंस कोई अनाउंसमेंट करता है, और आप अगर पास्ट में जाके इनकी हिस्ट्री देखेंगे, जब भी इन्होंने कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स की अनाउंसमेंट की है, वो हमेशा उसे एक स्केल पे लेके ही इम्प्लीमेंट करते हैं। इसका मतलब ये भी होता है कि उसका जो इम्पैक्ट है, वो आम जनता, आपके जैसे मेरे जैसे और भी जो लोग हैं, वो फील कर पाती है, या वो रिलेट कर पाती है, या कहीं ना कहीं एंड यूजर भी हो पाती है। सो इस तरह से अगर देखें तो ये बहुत अहम मूव है। दूसरी बात है कि ग्लोबली एआई की जो रेस चल रही है, और अब इस रेस में तो क्लियर कट विनर्स भी कहीं ना कहीं स्टैंड आउट होते हुए जा रहे हैं। वहां पे मुझे लग रहा है कि इंडिया एक बहुत ही अच्छे यूनिक पोजीशन पे है, जहां पे हमारे पास, जो वैसे भी हम टेक साइड में एक समय तक काफी लीड लेके इस पूरी दुनिया के हिसाब से अगर हम बात करें तो टॉप 3 कंट्रीज में हम आते हैं, तो वहां पे एआई की भूमिका तो इंडिया लेवल पे बहुत मैटर करती है। बिजनेस लेवल पे भी जो इम्पैक्ट है वो भी मैटर करता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ये मैटर करता है प्रोडक्टिविटी स्केल के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड वहां पे रिलायंस जैसी कंपनी जब अगर पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आती है, क्योंकि यहाँ पे सर मैटर एक सॉफ्टवेयर डेवलप करने का नहीं है, बल्कि बैकएंड के अंदर में भी जो है जो चीजें लगती हैं वो इंपॉर्टेंट है। आप देखिए, रिलायंस एक लौटी ऐसी कंपनी है दुनिया की जहाँ पे जिस तरह के पार्टनरशिप ग्लोबल स्केल पे इन्होंने कर रखी है, जैसे कि हम माइक्रोसॉफ्ट की बात कर रहे हैं, जैसे कि हम मेटा की बात कर रहे हैं, वो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगी इस स्केल ऑफ कंपनीज में। तो यहाँ पे उन्होंने एक राइट पार्टनर्स को भी अपनी तरफ अलाइन कर रखा है, एंड एट द सेम टाइम खुद की भी इनकी कैपेबिलिटी है इसे बिल्ड करके हैंडल करने की। तो ऑल ओवर अगर मैं इसे देखूं तो ये एकदम विन विन सिनेरियो बनने वाला है। और बिल्कुल सही है जो जी जी ने कहा कि अगर लीडर लीडर की तरह ही काम करे तो अच्छा लगता है। एंड जहाँ इंडिया एक एज अ प्रॉक्सी हम देख रहे हैं कि रिलायंस भी एक प्रॉक्सी टू इंडिया ग्रोथ है, वहां पे रिलायंस का इस स्टेप अप करना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, मुझे ऐसा लगता है, और ये आगे जाके इंडिया को बहुत बड़ा बेनिफिट भी देगा। आगे जाके बहुत बड़ा बेनिफिट ही देगा। और आपने बहुत अच्छी बात कही कि रिलायंस जब भी कुछ करता है तो एक बड़ा स्केल पे करता है, और सिर्फ ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही नहीं है,
एक बड़े स्केल की बात है, बड़े पैमाने पर जिस तरीके के मेटा के साथ यहाँ पे करार किया गया और कई सारे करार का ऐलान किया गया। सुनील सुब्रमण्यम साहब, इसको आप पूरे रिलायंस ग्रुप के में इस जो नई कंपनी का ऐलान किया गया रिलायंस इंटेलिजेंस, और सिर्फ ऐलान ही नहीं किया गया बल्कि इसके आसपास के कई सारी चीज़ों को भी ऐलान किया गया, जैसे कि एआई मिशन के लिए मेटा गूगल के साथ पार्टनरशिप किया गया, जियो फ्रेम जैसे एआई वाले स्मार्ट ग्लास को लॉन्च करने का ऐलान किया गया। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? कि मैं देख रहा हूँ ना, एक सोचिए कि कुछ 20 साल पहले कंप्यूटराइजेशन जब आया था बैंकिंग सिस्टम के अंदर, तो कितना डरावट था कि इतनी नौकरी चली जाएगी, कंप्यूटर के काम करेगा तो बैंक क्लर्क की क्या जरूरत होगी, ये होगी। आज सिचुएशन है कि बैंक की एम्प्लॉयमेंट उससे 3-4 गुना बढ़ चुकी है और कंप्यूटराइजेशन भी हो चुकी है। तो एआई का भी वही सिचुएशन है। और रिलायंस में क्या दो चीज है, एक उनके पास फ्री कैश फ्लो है निवेश करने के लिए, क्योंकि इस तरह की चीज में जब निवेश करते हो ना तो रिटर्न शायद टेल एंडर में होता है, यानी 2-3 साल नुकसान के बाद एकदम उसके बाद प्रॉफिट। और जीआई की हर सिटी में, चाहे वो जीआई मोबाइल पे हो या जियो रिटेल पे हो, उनका यही सोच होता है कि मैं अपने फ्री कैश फ्लो को यूज करके, इस्तेमाल करके मैं बिल्ड करूंगा एक स्केल के लेवल पर। तो फर्स्ट चीज वो है कि मेरे लिए उनके इन हाउस जो कंपनी के ग्रुप है उसके अंदर ही इसका इम्प्लीमेंटेशन के उनके लिए एक टेस्ट ट्यूब की तरह है। तो एआई का इम्प्लीमेंटेशन पहले वो अपनी कंपनियों में करेंगे, उसके हिट्स और मिसेस देखेंगे और फिर इसको वर्ल्ड वाइड एक्सपैंड करेंगे। तो सेकंड बात ये है कि जो बात कही थी ना स्केल, पर स्केल खाली आप देखिए एक पार्टनरशिप जो अभी इन्होंने भी कहा था, अभय ने भी कहा था कि पार्टनरशिप के रूट अपनाने से क्या होता है कि वर्ल्ड की जो ऑलरेडी वर्ल्ड ने कुछ तरक्की किया है तो उसको स्ट्रेट अवे इंडिया को लाकर और ग्लोकलाइज करे, यानी ग्लोबल को लेके लोकलाइज करना, वो है ये अहमियत जो रिलायंस दिखाएगी इसमें। और मेरा मानना है कि इंडिया का रास्ता अलग होगा, हमें कोई चीन का रास्ता या अमेरिका का रास्ता फॉलो करने की जरूरत नहीं है। हम अपना रास्ता जो हमारी तरफ जो रिक्वायरमेंट्स है, जैसे हमारी लेबर सप्लाई हमारे पास ज्यादा है, उसको सही तरह से इस्तेमाल करना और लोकल चीजों के ऊपर सेल्स करना। तो ये सब चीज मेरा मानना है कि अगर एक दिग्गज जैसे रिलायंस लीड लेती है और जिसके पास पार्टनरशिप्स प्लस कैश फ्लो है, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी अच्छी खबर है कि देश की तरक्की के लिए, ये इकोनॉमी के लिए भी बहुत बढ़िया एक चीज होगी। इसमें थोड़ा सा और मैं आपसे चाहूँगा ये बताना कि अगर संभव हो बता पाएँ कि इस रिलायंस इंटेलिजेंस से इन हाउस अगर कहें, अलग अलग कई सारी कंपनियां हैं, उसमें से सबसे ज़्यादा पोटेंशियल कहाँ दिख रहा है कि आप इन हाउस इसको यूज़ कर सकते हैं, उसका बेनिफिट आपको मिलता हुआ दिखे? मुझे लग रहा है कि उनके रिलायंस रिटेल में, क्योंकि वो मास हाँ। प्रोसेसिंग सिस्टम्स होती है, राइट? जब उनको हम्म, पूरे देश को कवर करना है तो एआई के जरिए वो जो रीच करते हैं, तो मेरे लिए ये जियो रिटेल में सबसे बड़ा इसका एक इम्पैक्ट होगा। क्योंकि बाकी के जो बिजनेस है ऑयल टू कंज्यूमर में तो ज्यादा वो तो ओल्ड एज बिजनेस है, ग्रीन एनर्जी में वो अपनी तरफ से कैपेक्स की जरूरत है, मगर और फाइनेंशियल सर्विस में देखें तो ऑलरेडी वर्ल्ड एआई को अडॉप्ट कर रही है, ब्लैक रॉक के साथ टाइप हो गया, तो उस रास्ते पे जाएंगे। तो रिटेल में मेरे को लगता है कि इसका सबसे बड़ा इमीडिएट इम्पैक्ट दिख सकता है। रिटेल में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट दिख सकता है। अभय अग्रवाल साहब, अगर एआई से अलग हट के देखें तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा चर्चा हुई वो आईपीओ को लेकर के, कि जियो का आईपीओ लेकर के आएंगे फर्स्ट हाफ में नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। ये कितना एक्साइटिंग है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए और बाकी इन्वेस्टर्स के लिए? जी बिल्कुल, मैं लक्ष्मण जी उस बात का आपका जवाब दूँगा, पर मैं एक जो एआई का आपने सवाल पूछा था, मैं इसको एक दूसरी तरह से इसको अप्रोच करना चाहूँगा। वो ये है कि हाँ जो हाँ, बिल्कुल। मुकेश जी ने कही बात, उन्होंने 2 शब्द यूज़ किए कि जो इंटेलिजेंस कंपनी बन रही है एआई की, वो ट्रेनिंग और इन्फरेंसिंग के लिए बन रही है। और ट्रेनिंग और इन्फरेंसिंग हमारी जो कंपनीज़ हैं, स्टार्टअप्स भी हैं, बड़ी कंपनीज़ भी हैं, जो अभी कर रही हैं, उनको जाना पड़ता है विदेशी सर्वर्स पे, डीपसीक या चैट जीपीटी ऐसी कंपनीज़ को बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं अपने मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए। आप सेमीकंडक्टर कंपनी है, स्पेस टेक कंपनी है, सॉफ्टवेयर कंपनी है, सास कंपनी है या फिर साइबर सिक्योरिटी कंपनी, आपको मॉडल्स ट्रेन करने हैं, तो उसके लिए बहुत खर्चा लगता है, क्योंकि ये जो बाहर की जो कंपनीज़ हैं, वो टोकन्स जनरेट करती हैं बहुत महँगे प्राइस पे। तो ये एक गीगावाट जो गीगा स्केल जो बनेगा इसका सेंटर एआई का जो इन्फ्रेंसिंग और ट्रेनिंग के लिए, वो मुझे लगता है भारतीय जो कंपनीज हैं जो एआई टूल्स डेवलप कर रही हैं,
अपने बिजनेस के लिए, उनके लिए एक बहुत बड़ी बेनिफिट होगा उनको कि वो इंडिया में ही और इंडियन कॉस्ट पे, और आई एम श्योर रिलायंस करेगा तो कॉस्ट पर्सपेक्टिव उसमें बहुत होगा। तो जो हमारा एआई इनिशिएटिव है एज अ कंट्री, और इसमें जॉब लॉस की बात जाने दीजिए क्योंकि उसकी तरफ नहीं जा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि नए प्रोडक्ट्स, नए टूल्स, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, उसको एआई टूल्स क्रिएट करने हैं। हमारा खुद का एक डेटा सेंटर हो ऐसा जो ट्रेनिंग ऑफ मॉडल्स और इन्फ्रेंसिंग कर पाए, तो मुझे लगता है ये पूरे सेक्टर को बेनिफिट होगा जो पूरा एआई टूल यूज करना चाहता है। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। जो दूसरा आपने सवाल पूछा, डेफिनेटली एक मार्केट में उत्साह होगा और है भी कि एक नई लिस्टिंग होगी। उन्होंने कहा पहले 6 महीनों के अंदर हो जाएगी अप्रूवल्स आते आते। तो एक इतना बड़ा लिस्टिंग होती है मार्केट में तो मार्केट कैप जो है देश का वो वैसे ही बढ़ता है, और एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। अभी एक स्केर्सिटी वैल्यू है, सिर्फ एक लिस्टेड प्योर प्ले टेलीकॉम कंपनी है, एक और आएगी तो मार्केट उसको डेफिनेटली वेलकम करेगा। मुझे लगता है एक वैल्यू अनलॉकिंग है एक तरह से रिलायंस के शेयर होल्डर्स के लिए। तो इसको और ये दिखाता भी है कि कंप्लेसेंसी नहीं है ग्रुप में, कंटिन्यूअसली रिवॉर्ड करना चाहते हैं शेयर होल्डर्स को अलग अलग तरीके से। जियो फाइनेंशियल की लिस्टिंग हुई थी, उसके बाद अब जियो इसकी लिस्टिंग है, उसके बाद शायद रिटेल की लिस्टिंग होगी। तो हर तरह से वैल्यू अनलॉकिंग है जो ग्रुप में होती रहेगी। आई थिंक इसका भी कॉन्फिडेंस है अब इन्वेस्टर्स में। ये वैल्यू अनलॉकिंग है, ये एक बड़ी चीज़ है। दलजीत सिंह कोहली साहब, ये वैल्यू अनलॉकिंग किसको फ़ायदा पहुंचाएगा? कंपनी, रिटेल इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इसको कैसे देखना चाहिए हम लोगों को? लक्ष्मण जी, जब वैल्यू अनलॉकिंग होगी तो सभी स्टेक होल्डर्स को फायदा होगा। तो इंस्टीट्यूशन भी जो होल्ड कर रहे हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर है, जिसके पास भी शेयर होगा, अब वो ऑब्वियसली एक्चुअल कंटूअर्स डील के क्या होंगे वो जब आएगी डील तब पता चलेगा। बट डेफिनेटली रिलायंस ने हमेशा पहले भी अपने शेयर होल्डर्स को बहुत अच्छे से रिवॉर्ड किया है, और इन्वेस्टर्स को ये उम्मीद बहुत समय से थी, क्योंकि जब से जियो आया है सबको पता है कि अल्टीमेटली ये लिस्ट होना ही है, अलग से एक अलग कंपनी बनेगी और ये लिस्ट होगा ही। तो वो अब पिछले एजीएम में भी कई बार ये बात चली थी कि भाई शायद इस बार कुछ अनाउंसमेंट होगा। आई थिंक दिस टाइम वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल हुई है। तो अब वैल्यूएशन पे डिपेंड करेगा, जब जिस समय लिस्ट होगी उस समय होगा। बट डेफिनेटली वैल्यू अनलॉकिंग होगी तो सभी को फायदा होगा, और सब लोग इसकी उम्मीद लगा के। हाँ, इसका कुछ आप लोग, आज चूंकि पहले से बातचीत चल रही थी, आज डेडलाइन यहाँ पे दिया गया है, तो इस डेडलाइन को कैसे देखा जाए कि फर्स्ट हाफ में हम लोग करेंगे, मार्केट कंडीशन के हिसाब से देखा जाए या साइज के हिसाब से देखा जाए? नहीं, ये इतना समय तो अप्रूवल आने में भी लगता है ना। तो अब जैसे अगर प्रोसेस तो ऑब्वियसली पता है सबको कि होना है लिस्ट। अब जैसे अभी रिटेल भी लिस्ट होना है, लेकिन रिटेल लिस्ट होने के लिए काम करना शुरू करना पड़ेगा, उसमें समय बहुत समय लगता है। आप लोग का इंटरनल, आप लोग आपस में बातचीत करते हो, कुछ अनुमान के क्या साइज हो सकता है? मैं नंबर्स नहीं बात करना चाहूंगा, क्योंकि हम लोग एक्चुअली ज्यादा फोकस करते हैं स्मॉल और मिड कैप पे। ऑफ कोर्स इंटरनली काम करते हैं, बट क्योंकि हमारा कोई कवरेज नहीं रहता है और हम लोग सेल साइड रिसर्च तो है नहीं जो एग्जैक्टली रिपोर्ट निकालते हैं इस पे, तो आई थिंक इट इज बेटर नॉट टू कमेंट ऑन दैट। अभिषेक अग्रवाल साहब, इस जियो के आईपीओ, इसको आप कैसे देखते हैं, इस ऐलान को? मुझे लग रहा है शायद ये पहले हो जाता, बट अभी अगर हम देखें इंटरनेशनली जिस तरह की अभी पॉलिटिक्स चल रही है या ट्रेड वॉर चल रहा है, थोड़ी अनसर्टिनिटी जो बनी हुई है, उसको लेके मुझे लग रहा है कि ये एक्चुअली इस तरह का अनाउंसमेंट थोड़ा नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट हाफ में हम कर रहे हैं। बिकॉज देखिए कोई भी लेवल पे आपको एक फॉरेन कैपिटल तो साथ में लगता ही है जब इतने बड़े साइज की आईपीओ आती है, और जिस तरह का एक्सोटस हम देख रहे हैं एफआई की सेलिंग का जो लास्ट 4 महीने से चल रही है, तो उसको रहते हुए मार्केट के सेंटिमेंट को रिस्पेक्ट करते हुए मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा एक तरह से एकदम ही डेफिनेटिव नहीं हुआ, बट हाँ एक क्लैरिटी है कि आप नियर टर्म में ये होते हुए देख रहे हैं। नियर टर्म में ये होते हुए देख रहे हैं। इसमें सुनील सुवर्णम साहब, आईपीओ से अलग हट के अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ तो कई सारे कह सकते हैं नए सेगमेंट में अपना फुटप्रिंट रिलायंस बढ़ाएगा, चाहे ग्रीन एनर्जी की बात हो या फिर बाकी चीज़ों की बात हो। तो इसके आधार पर क्या माना जाए, जो अलग अलग सेगमेंट है जहाँ पर रिलायंस अब तक अपना कारोबार करता रहा है, अब दूसरे सेगमेंट में जा कर के ट्रेडिशनल कारोबार पर फोकस कम रखा जाएगा या फिर दोनों पर पैरेलल रख पाएंगे? क्या लग रहा है मैनेजमेंट कमेंट्री से? नहीं, बिल्कुल पैरेलल रख पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने अपनी सक्सेशन प्लान में स्प्लिट कर दिया है कि
लड़की कौन सी दिखेगी, लड़के ये कौन सी दिखेगा और दूसरा लड़का क्या करेगा। तो ये सब क्लैरिटी आ गई है, मगर खास चीज क्या है कि वो ओल्ड प्लस न्यू दोनों को साथ में, यानी उनके घोड़े में दो घोड़े का ये चैरियट है। ये ऐसा नहीं कि न्यू में गए तो पुराने को भूल गए, नहीं, मगर इसको क्लियरली और यहीं पे ये आईपीओ की बात इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आज क्या हो रहा है ना, अब कोई भी सेक्टोरल फंड लीजिए, उसमें रिलायंस का होना जरूरी होता है, क्योंकि वो हर सेक्टर में शामिल होगा तो उस सेक्टर में वो आ जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या है आपको कि एक उसका एनर्जी इंडेक्स में उसका तो बड़ा शेयर है क्योंकि ऑयल कंपनी है, मगर हर दूसरे इंडेक्स में भी वो शामिल होता है। तो इट्स मुश्किल की चीज होती है, क्योंकि उसका वैल्यू एम्बेडेड वैल्यू कहते हैं इसको, हर बिजनेस का अलग जज करके कितना होना चाहिए। अब ये सेपरेट कर रहे ना, वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि विभिन्न सेक्टर के इंडेक्स में एक प्योर प्ले उस सेक्टर की कंपनी आ जाएगी, तो प्राइस डिस्कवरी भी बहुत बढ़िया होगा। तो मेरा मानना है कि ये ऐसी अनलॉकिंग जो करना चाहिए उनको जितने जल्द हो सके, और शायद इसलिए आज मार्केट में 2% का गिरावट आया उनके शेयर में, क्योंकि डिसअपॉइंट हुई थी मार्केट कि जियो का आईपीओ को नेक्स्ट ईयर तक टाल दिया गया है। तो सभी की अच्छा। इच्छा है कि रिलायंस अपने अलग अलग बिजनेस में, वन, पर सेकंड बात आपको याद रखना चाहिए कि वो एक एग्जिस्टिंग बिजनेस में एंटर करती है तो उधर वो कंपटीशन को वाइप आउट करती है। जब नए बिजनेस में जा रही है तो उधर कंपटीशन नहीं है, यही रास्ता खोल रही है उधर, राइट। तो इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि कौन से सेक्टर जाके रिटेल में जाएंगे, तो बहुत सारे रिटेल प्लेस है। टेलीकॉम में जियो आएगा तो ऑलरेडी भारतीय एयरटेल लिस्टेड है। तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज होगी कि वो एग्जिस्टिंग बिजनेस को कैसे प्राइस करेगी और नए बिजनेस को कैसे प्राइस करेगी। तो वो एक बहुत दिलचस्प वाली बात हमें देखना पड़ेगा इस आईपीओ के सिलसिले में। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट होगा जो हमें देखना पड़ेगा। अभय अग्रवाल साहब, इन्होंने जो कहा इसी के दौरान बता दूं कि यहाँ पे एक वैल्यू क्रिएशन रोड मैप पूरा एक दिया मुकेश अंबानी ने कि कैसे हम पूरा वैल्यू क्रिएशन करने वाले हैं, एग्जिस्टिंग बिजनेस को बचा कर रखेंगे, बाकी हम लोग नए सेगमेंट पर फोकस कर रहे हैं। ये मान के चला जाए कि रिलायंस के पूरे ग्रोथ प्लान का एक की फोकस एरिया रहेगा ये। बिल्कुल रहेगा। और आप ग्रुप की हिस्ट्री देख लीजिए, शुरू हुआ है जब से मुकेश जी ने इंचार्ज बने, उसके पहले भी वो बड़ी बेट्स करते हैं। टेलीकॉम बड़ी बेट थी, मतलब ऐसा सेक्टर जहां पे आप बिलियंस ऑफ डॉलर की वैल्यू क्रिएट कर सके। छोटे प्लेस करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कंपनी का मार्केट कैप अभी 200 बिलियन डॉलर के करीब है। तो आई एम श्योर वो भी ये सोच रहे हैं कि कैसे ये 200 बिलियन 400 बिलियन बनेगा। 400 बिलियन बनाने के लिए बड़ी बेट्स लेनी पड़ेंगी जो 50-100 बिलियन डॉलर ऐड करें मार्केट कैप के। तो ये करना उनके लिए भी जरूरी है कि जो एग्जिस्टिंग बिजनेस हैं वो तो ग्रो होंगे, पर उसके साथ जो बड़े और एडजेसेंसीज हैं, नए बिजनेस कैसे कैप्चर करें जो अगले 5 साल में 50-100 बिलियन डॉलर का मार्केट कैप एडिशन कर पाएं। तो ये जो सारे अनाउंसमेंट हैं, एनर्जी बड़ा स्पेस है, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा स्पेस है, और तो ये डेफिनेटली सोच समझ के ही उन्होंने किया है कि कैसे मार्केट कैप उनकी डबल होगी और कैसे ये नए जो एडिशंस हैं बिजनेसेस के, वो एक बड़ा पार्ट ड्राइव करेंगे नए मार्केट कैप का। हालांकि उन्होंने एक चीज और कही कि गोल्डन डिकेड जो 2027 तक है, तब तक रिलायंस इंडस्ट्रीज का पूरा एबिडा जो है वो डबल से ज्यादा हो जाएगा। तो कहां से ज्यादा पोटेंशियल आपको दिख रहा है वैसे? नहीं, देखिए कोर बिजनेस तो है ही, वो तो फायर कर ही रहे हैं अंडर प्रेशर। आप देखिए जो भी है, जो ऑयल O2C बिजनेस जिसको हम कहते हैं, ऑयल टू कंज्यूमर बिजनेस, वो एक कैश काउ है और वो काफी सपोर्ट भी करता है ग्रुप की बैलेंस शीट को, क्योंकि जो ग्रुप की डेट है जिससे उन्होंने बाकी बिजनेसेस क्रिएट किए जो जिनको शुरू में काफी जरूरत थी फाइनेंशियल सपोर्ट की, वो O2C बिजनेस ने किए। सो आई थिंक O2C बिजनेस जो है वो डेफिनेटली ग्रो करता रहेगा, और अभी उसमें ग्रोथ कम है, पर मुझे लगता है कि उनका फोकस रहेगा कि कैसे ग्लोबल एक्विजिशंस की तरह ऐसे समय में जबकि फॉसिल फ्यूल का मार्केट डिप्रेस्ड है उसको बढ़ा सकें। दूसरी तरफ नए बिजनेसेस जो हैं, जो अब नए जियो टेलीकॉम इंडिपेंडेंट होगा तो उसमें क्या नए बिजनेसेस कर सकते हैं। तो आई थिंक मिक्स होगा सारे बिजनेसेस का, और एक तरह से वो ग्रोथ सारे ओल्ड प्लस न्यू सब ग्रोथ ड्राइव करेंगे। अब ये सारे ग्रोथ ड्राइव करें। दलजीत सिंह साहब, ये चूंकि डबल करने की बात यहाँ पे की है एबिडा को 2027 तक, बाकी नंबर भी निकल करके सामने आए हैं। आप नज़र डालें यहाँ पे एक इन्वेस्टर्स के लिए किस तरह का इंडिकेशन है यहाँ पे? तो देखिए, मेरे ख्याल से नॉर्मली जो इस तरीके का गाइडेंस नहीं देते हैं, और ये एक बहुत ब्रॉड गाइडेंस जो दिया है, ये बहुत अच्छा इंडिकेशन है मार्केट के लिए भी।
समझने के लिए कि किस ओर में जा रहे हैं। तो रिलायंस की अगर हम हिस्ट्री देखें, ये हमेशा लमसम में ही चलते हैं, 5-5 6-6 साल लगातार केपेक्स चलता है, 3 साल 5 साल, और फिर सडनली कुछ पीरियड 2 साल 3 साल ऐसे आते हैं जब बहुत बड़े नंबर्स आते हैं। तो पहले भी हमने देखा, जैसे टेलीकॉम में काफी समय तक इन्वेस्टमेंट चलता रहा, फिर एकदम 2-3 साल अच्छे नंबर, बड़े-बड़े नंबर्स आए। तो सेम चीज अभी यहाँ पर, क्योंकि अभी हम देखें जो पिछले 2 साल 3 साल पहले जो अनाउंसमेंट किए थे सोलर में, और जो न्यू एनर्जी के जो बाकी अनाउंसमेंट्स थे, उसमें काफी कुछ अब जो है वो कमर्शियलाइजेशन स्टेज पे आने वाला है। तो कुछ इस साल, कुछ अगले साल में आने वाला है। तो आई थिंक उनका जो बेनिफिट है वो हमें अगले साल 26 में कुछ दिखना शुरू होगा, वहां से नंबर बढ़ना शुरू होंगे। O2C तो अपना जो कैश का है वो तो चल ही रहा है, और जो ये वैल्यू अनलॉकिंग होगी टेलीकॉम से, ये अपने आप को देगा। आप देखिए तो इन्होंने अब टेलीकॉम में जो कम्पिटिटिव इंटेंसिटी कम हो गई, तो वहां से भी एक बड़ा EBITDA नंबर आना शुरू हो गया, और ये और आगे बढ़ेगा। एयरटेल तो इसी उम्मीद पे ही बैठा है ना, ये बढ़ाएंगे तो हम भी बढ़ाएंगे। तो इसी तरीके से यहाँ भी चल रहा है। तो मतलब ये हुआ कि अगले 2 साल में जो पिछले 3 साल का केपेक्स है वो बेनिफिट मिलने वाला है, प्लस ये जो जो सेपरेट लिस्टिंग होगी उसका एडवांटेज मिलेगा, और ये सब मिला करके जो नए एनर्जी जो पोर्शंस हैं वहां पर आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। तो ये सब मिल करके आपका ये जो एबिडा का पाथ है वो बहुत क्लियर है, और आई थिंक उस हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ से भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है रिलायंस में बाई करने की। जो हमारे फोकस फंड में नहीं है, क्योंकि हमारा फंड छोटा स्मॉल कंपनीज के लिए है, बट अगर किसी का मैंडेट ऐसा हो कि बड़ी कंपनी ले सकते हैं, तो दिस इज अ वेरी गुड टाइम टू मैनेज। हालांकि ये बताना भी ज़रूरी है दर्शकों को कि जो चैनल आप देख रहे हैं उसका स्वामित्व रिलायंस के पास है, तो आप अगर निवेश करना चाहते हैं तो किसी एक्सपर्ट से सलाह मशविरा करके ये करें। एक चीज़ और, हालांकि आप निवेशक होने के नाते दलजी साहब बता रहे थे, लेकिन सच पूछे तो मेरा इंटरेस्ट जो है एक कंज्यूमर होने के नाते यहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है। जियो फ्रेम का जो ऐलान इन्होंने किया है, जियो फ्रेम मैं पिछले दिनों गया था स्टॉकहोम या कहीं याद नहीं आ रहा कौन से देश में गया था, तो वहाँ एक कंपनी के यहाँ गया था, तो उन्होंने दिखाया था कुछ इस तरह का ग्लास उन लोगों ने इन्वेंट किया था, बड़ा इंटरेस्टिंग था। मतलब देखने से लगता था कि दुनिया इतनी बदल जाएगी, मुझे नहीं पता था। अब रिलायंस ने यहाँ पे जियो फ्रेम का ऐलान किया है, जो AI वाला स्मार्ट ग्लास रहेगा। अभय अग्रवाल साहब, आएगा तो आप लेंगे कि नहीं लेंगे? कि बाकी सब लेंगे तो क्या होता है, सब लेते हैं, कोई ना ले तो कोई भी ना ले, पर ले दूसरा तो फिर अब एक चर्चा हो, आपने लिया देखा, पर आई एम श्योर यूजफुल भी होगा, और आई थिंक रेजिस्ट करने का बहुत यूजफुल है, टेक्नोलॉजी को बहुत ज्यादा यूजफुल है, फायदा। हाँ, बहुत बहुत इसमें तो मैं तो वहाँ देखा तो मैं तो बिल्कुल सरप्राइज हुआ है कि हम लोगों को ये हाथ में मोबाइल कैमरा और लैपटॉप टैब लेके घूमने की जरूरत ही नहीं होगी। अभिषेक अग्रवाल साहब मुस्कुरा रहे हैं। मैं हाल फिलहाल जापान में था, तो मैंने कुछ AI ग्लासेस ट्राई किए थे जो भी वर्ल्ड के अंदर में लीडिंग है। एंड क्लियरली जैसे मोबाइल का रेवोल्यूशन हमने देखा था, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये अब हमारे लाइफ का एक बहुत इंटीग्रल पार्ट बन गया है। मुझे लग रहा है कि अब उसी तरह से आप AI का एक्चुअल कंज्यूमर प्ले ग्लासेस में देखेंगे। दूसरी बात है, रिलायंस ये इसलिए कर पा रहा है बिकॉज मेटा, जो कि इस पर्टिकुलर डोमेन के अंदर में बहुत एग्रेसिवली इन्वेस्टेड है, और उन्होंने इधर एक तरह से लीड आप कह सकते हैं ले चुके हैं। उन्होंने रेबैन के साथ एक पार्टनरशिप की है, जिसकी वजह से एक उन्होंने ऑलरेडी 2 साल से जो ये रेबैन के ब्रांड के थ्रू बेच रहे हैं, उधर उन्हें बहुत बड़ा वैलिडेशन जो है वो मिला। और क्योंकि मेटा एक पार्टनरशिप ऑलरेडी लेके बैठा हुआ है रिलायंस के साथ, इसलिए वो इन्होंने इंडियन मार्केट में एक्सटेंड कर दिया थ्रू रिलायंस। सो दैट मीन्स आज अमेरिका में रेबैन इतना प्रोमिनेंट ब्रांड है, और उसके थ्रू ऑलरेडी बहुत बड़ा वॉल्यूम बिक रहा है। इंडिया के अंदर में अफोर्डेबल प्राइसिंग, क्योंकि अभी भी ये इतनी अफोर्डेबल नहीं है। अगर आप ग्लोबल पेयर ग्रुप को अगर देखें, वहां पर रिलायंस का तो मॉडल ही है कि वो प्राइसिंग इतनी परफेक्ट करते हैं कि वो रिटेल लेवल पे एक्सेप्टेबिलिटी आती भी है, और फिर मास स्केल पे जब उसे अडॉप्ट होता है तो फिर उसका इम्पैक्ट आप एक्चुअल देखते हैं यूज केस पे। तो उस तरह से अगर देखें तो ये अब क्योंकि अब रिलायंस इधर आ चुके हैं, तो बहुत जल्द अब इंडिया के मार्केट के लिए रियलिटी होगी। और क्योंकि मेटा एज अ टेक्नोलॉजी पार्टनर ऑलरेडी एक लेवल पे अचीव कर चुका है अपने टेक्नोलॉजी के प्रूवनेस को, सो ये बहुत अच्छा कोलैबोरेशन इंडिया के लिए मुझे होता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल, बहुत अच्छा कोलैबोरेशन होगा। और आप अभी लैपटॉप के सामने बैठे हैं कि कैमरे के सामने मुझे नहीं पता, लेकिन जब ये ग्लास आ जाएगा ना, तो आप चाहें तो ग्लास लगा करके भी इस तरह से लाइव कर सकते हैं, हमारे चैनल पर बैठ सकते हैं। सुनील स्वर्णम साहब,
इस ग्लास पे तो जब आएगा तब आपसे मैं उसी को कहूँगा पहन के, आप मुझे बताइए कैसा लग रहा है आपको। लेकिन फिलहाल एक जो बड़ा ऐलान किया गया, क्योंकि मैं एनर्जी सेक्टर को लेकर बड़ा एक्साइटेड रहता हूँ कैसे ट्रांसफॉर्म कर रहा है, और 2047 तक क्लीन एनर्जी की जो बात की गई थी इंडिया की, उस तरफ रिलायंस एक बड़ा कदम उठा रहा है। उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग सी बात कही कि इसमें स्केल भी होगा, एम्बिशन भी होगा और इसका इम्पैक्ट भी दिखेगा। वो ऐसा दिखेगा जो रिलायंस ने अभी तक बाकी सेक्टर में जितना भी कुछ किया उससे ज़्यादा इम्पैक्ट दिखेगा। तो क्लीन एनर्जी लगता है कि एक बड़ा फोकस एरिया रहने वाला है। बहुत बहुत बढ़िया। उन्होंने बताया था कि कच्छ में जो कर रहे हैं वो सोलार की जो कैपेसिटी वो भयंकर है। तो गोल हमारा था कि 230 तक हम 50% हमारा एनर्जी सोलार या अल्टरनेटिव एनर्जी के थ्रू करेंगे। और रिलायंस की ऐसी कदमें इसमें बहुत बहुत अहम चीज रखती है। और यही एक कंपनी है जो पूरे इंडिया में उसकी ब्रांचेस है, वो कहीं पे भी अपॉर्चुनिटी उसको ढूंढ के उसको एक्सप्लॉइट कर सकती है। और सेकंड जो बात मैंने पहले की थी, कैश होना चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए। आपको एक लंबी अवधि का टाइम, तो वो उनके पास है। यानी कैश आज लगाते हैं तो 3-4 साल के लिए उसमें प्रॉफिट नहीं दिखा, फिर भी वो लग के रहते हैं और ये नहीं दिखते कि हर साल ब्रेक इवन हो गया कि नहीं। तो वो एक लॉन्ग टर्म विजन जो होता है, जो इस फील्ड में जरूरी है, क्योंकि सोलर सस्ता नहीं है, ऑल्टरनेटिव एनर्जी सस्ता नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट की सब्सिडी के बावजूद उसकी ग्रोथ इतनी नहीं हो रही है। इसलिए कोई बड़ी प्राइवेट दिग्गज जिसके बाद कैश फ्लो है, एक लॉन्ग टर्म विजन है, अगर वो इस गोल को अपनाती है ना, तो देश के लिए ये बहुत अच्छी चीज है और जरूर वो इसमें आगे बढ़ेगी इस एंडेवर में। बिल्कुल। सोलर में एक दिक्कत यह होता है कि पूरे सप्लाई चेन में हम लोग बहुत आत्मनिर्भर होते नहीं हैं, बहुत सारी चीज़ें पर हमें इंपोर्ट पर निर्भरता रहती है। तो ये एक बड़ा चैलेंज होता है। जो आप कह रहे थे बहुत परफेक्ट पॉइंट है कि वो स्केल अभी भी नहीं दिखा है, इस्तेमाल करना बढ़ा है, इस स्केल अभी भी नहीं दिखा है। अलग अलग छोटे छोटे पॉकेट में चीज़ें हैं जो प्रोड्यूस हो रही हैं। कहीं पे हम लोग PLI जैसे स्कीम दे रहे हैं तो लोग उससे इंसेंटिवाइज होकर प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन वो स्केल, और जहाँ पे इंसेंटिव नहीं है वहाँ पे प्राइस का मामला आ जाता है। तो अभय अग्रवाल साहब, मुझे लगता है कि जब रिलायंस इसमें एग्रेसिवली आएगी तो प्राइस का मामला भी खत्म हो जाएगा, स्केल का मामला भी खत्म हो जाएगा। नहीं, डेफिनेटली आई थिंक रिलायंस और दो और बड़े ग्रुप्स जो हैं जो स्पेस पे हैं, वो जो गवर्नमेंट के अब फोकस है कि छोटे प्लांट ना बना के बड़े प्लांट्स पे फोकस किया जाए। और जैसे मैंडेट है कि 10% जो भी प्लांट की कैपेसिटी है उसको एक बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम होना चाहिए। वो छोटी बात नहीं है, वो सडनली आपका कैपेक्स बढ़ा देती है। तो उसका मतलब ये है कि अब छोटे प्लेयर्स उस स्पेस में खेल नहीं सकते, उनको खेलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी रिक्वायरमेंट है कैपिटल की कि आपको एक बैलेंस शीट स्ट्रेंथ चाहिए इन प्रोजेक्ट्स को क्रिएट करने की और जेस्टेशन पीरियड के थ्रू कैरी करने की। उसके बिना आप नहीं कर पाएंगे, और एग्जीक्यूशन स्किल भी होना चाहिए। सो आई थिंक ये 2-3 ग्रुप हैं इस देश में जो ये कर सकते हैं, उसमें रिलायंस क्लियरली एक लीडर है। तो जो भी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है और जो क्वालिटी की रिक्वायरमेंट है और डिस्ट्रीब्यूशन साथ में होना चाहिए, ये एक इंटीग्रेटेड प्ले है। और मुझे लगता है कि एक इतना बड़ा सेगमेंट है, ग्रोथ सेगमेंट है अगले 10, 15, 20 साल के लिए, तभी रिलायंस को भी अट्रैक्ट कर रहा है कि इसमें हम अच्छी वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। तो मुझे कोई डाउट नहीं है कि जो भी ये करेंगे 100% उसमें सक्सेसफुल रहेंगे। जो भी करेंगे उसमें सक्सेसफुल होंगे, इसको लिए कोई डाउट नहीं है। और ये एक बड़े पैमाने पर आएगा तो चीज़ें जो क्लीन एनर्जी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा आसान भी यहाँ पर सस्ते में आपको मिला करेंगे। हम चर्चा कि इसमें कंज्यूमर सेगमेंट पे एक बड़ा विशेष फोकस किया गया है और कहा गया है कि जितने भी कंज्यूमर के ब्रांड हैं सबको एक अम्ब्रेला के नीचे लाया जाएगा, रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड को लेकर के। ये डायरेक्ट सब्सिडरी होगी RIL को। तो इसके पीछे आप क्या मकसद देख रहे हैं और क्या हासिल करना चाहती होगी कंपनी? ये बहुत अच्छा मूव है आई थिंक। और ये काफी समय से कुछ इन्वेस्टर्स बात भी कर रहे थे कि भाई अलग अलग सब्सिडरीज हैं, कुछ रिलायंस वेंचर में है, कुछ रिलायंस रिटेल में है। तो उसमें क्या होता है कि आपको पता नहीं चलता है कि कौन सी चीज कहाँ जा रही है, कौन सी कंपनी या कोई ब्रांड किस में है। तो जो अभी जैसे हम देखें तो पिछले समय में जो रिलायंस ने दिखाया है ग्रोथ, काफी नंबर ऑफ स्टोर्स ऐड करे हैं, बहुत सारा जियो मार्ट में काफी ग्रोथ दिखाई है। रिलायंस डिजिटल बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छा ग्रोथ दिखता है। तो ये सब चीजें अगर कंसोलिडेट होकर के, हमने अभी कैंपा कोला ब्रांड वगैरह लिया था, तो अलग अलग जगह पे जब होते हैं ना तो वो डिस्पर्स हो जाता है, तो उसमें आपको पता एक्चुअल इम्पैक्ट नहीं पता चलता है। तो अगर ये सब एक जगह कंबाइन कर देंगे तो समझना भी आसान होता है
और आपको उसका एक टोटल कंबाइंड इफेक्ट दिखाई देता है। और आई थिंक ये मूव भी होगा शायद जब आगे चल के वो जो वैल्यू अनलॉकिंग की बात है रिलायंस रिटेल की, तो उसमें भी ये काम आएगा कि आपको एक पूरा स्केल दिखाने का समय एक मौका मिलेगा कि टोटल क्या चीज है। तो आई थिंक कंसोलिडेट करना हमेशा इन्वेस्टर्स के लिए भी अच्छा रहता है, और कंपनी को जब वैल्यू अनलॉकिंग करनी हो तो उसमें भी आसानी मिलती है। तो वही मकसद और होगा। अभिषेक अग्रवाल साहब जैसे लोग होते हैं तो उनके लिए कैलकुलेट करना ज़्यादा इजी होता है, कौन सी कंपनी कहाँ पे कितना ग्रोथ यहाँ पे दिखा रही है। अभिषेक जी, इसमें एक चीज़ और ऐलान किया गया है कि इसमें फोकस किया जाएगा किस तरह से ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर को जोड़ा जाए, और अगले 5 साल में 1 लाख करोड़ रुपये के रेवेन्यू का एक टारगेट यहाँ पर रखा गया है। और ये अपेक्षा की गई कि 2 ट्रिलियन का जो कंजम्पशन अपॉर्चुनिटी इंडिया में है उसको कैसे मैक्सिमम लेवरेज किया जाए। तो ये आपको लगता है कि एक बड़ा एवेन्यू हो सकता है? ये बिल्कुल हो सकता है। और अगर हम इम्पैक्ट की बात करें या आगे पॉपुलेशन सर्व की बात करें, क्योंकि अब देखो आप अभी हम जियो की बात कर रहे थे, 50 करोड़ उनके पास सब्सक्राइबर है, 150 करोड़ टोटल पॉपुलेशन है इंडिया की। तो 1/3 पॉपुलेशन को तो आप एक पर्टिकुलर बिजनेस से ही आप कर रहे हो यहाँ पे। उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो यहाँ पे वो नंबर इससे भी बड़ा हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात है, आप रिलायंस का एक पैटर्न देखेंगे तो हमेशा वो तब आती है जब एक लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका होता है देश में। आप रिटेल में देखें, आप टेलीकॉम में देखें, वहां पे ऑलरेडी इनकम्बेंट्स थे और एक लेवल की एक्सेप्टेंस आ गई, और फिर स्केल करने के समय, एक सही तरीके से स्केल करने के समय जो मार्केट की नीड बन जाती है कि आप सडनली एक तरह का स्केल, हमें बहुत हाइपर ग्रोथ चाहिए और वहां पे बहुत बड़े पैसे भी लगाने हैं और बहुत जल्दी फास्ट पेनिट्रेट भी करना है, वहां पे जो है रिलायंस बहुत ही जबरदस्त तरीके से मैनेज कर पाता है। सो 100% ये जो है ये होता हुआ दिख रहा है। और क्योंकि इंडिया ऑलरेडी उस स्टेज पे है, तो स्टेज इज सेट फॉर देम टू एक्चुअली स्केल एंड गेट द मोस्ट आउट ऑफ इट। सो मैं ज्यादा कुछ सरप्राइज नहीं हूँ कि नंबर के हिसाब से आपको लगता है बहुत एडवेंचरस या एग्रेसिव है, बट एट द सेम टाइम देश के जो फंडामेंटल्स है वो इस तरह से, अभी अगर आप देखेंगे जो भी ऑनलाइन कंपनी जैसे जेप्टो है, बिग बास्केट है, और उनके अगर आप वॉल्यूम्स देखेंगे तो आपको दिखेगा कि बिल्कुल अभी जो इंडिया स्टार्ट किया है, अभी तो और इसे स्केल होना बाकी है साइज में। तो वहां पे रिलायंस जैसे प्लेयर की यहाँ पे जरूरत भी है, और इससे मार्केट बढ़ेगा, कम नहीं होगा। मार्केट बढ़ेगा, कम नहीं होगा। हालांकि मैं तो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कैंपा कोला को लेकर के, क्योंकि मैं शुरुआती दिनों में दिल्ली के मोती नगर इलाके से, अगर आप में से कोई वाकिफ़ हो तो वहाँ पे कैंपा कोला की बड़ी पुरानी फैक्ट्री होती थी, वो बंद हो गई थी जहाँ तक मुझे याद है, आज से 20-25 साल पहले की बात है। तो उसको रिवाइव किया गया, वो मुझे आज भी जहन में याद है कि वो एक होता है ना, पुरानी चीज़ें कई बार याद हो जाती हैं, तो उसको रिवाइव करने की बात यहाँ पे की गई है और उसका एक रोड मैप भी दिया गया है। तो ये मैं सुन रहा था, बड़ा गौर से सुन रहा था। सुनील जी, कैंपा कोला आपने पिया कि नहीं पिया कभी अपने ज़माने में? हाँ बिल्कुल, 1977 नया वाला नहीं, पुरानी वाली बात कर रहा हूँ। पुराने में 1977 में जब कोका कोला को धक्का दिया था जनता पार्टी गवर्नमेंट ने, जब 777 कोला और कैंपा कोला, राइट, तो ये दोनों चीजें यहाँ पर थे ना, चॉइस ही नहीं था। तो मैं तो 17 साल की उम्र में था, तो बहुत ढेर सारा कैंपा कोला पीता हूँ मैं और उसका अभी भी याद है मुझे, कैंपा कोला ऑल द डेज करके एक गवर्नमेंट का सॉन्ग क्या नहीं। मगर ये जो आपने बात किया ना कंज्यूमर का, दो मैं कारण देख रहा हूँ इधर लॉन्ग टर्म विजन से। एक है ये अपना सक्सेशन प्लान में उसको एक सक्सेसर को देना चाह रहे हैं ना, तो नेचुरली उसको कंसोलिडेट करना जरूरी है ताकि पार्टीशनिंग में झगड़ा ना हो। तो वो क्लियर विजन है। सेकेंड चीज मैं देख रहा हूँ कि जैसे ऑयल टू कंज्यूमर में वो एंड टू एंड वर्टिकल इंटीग्रेशन और हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन उन्होंने किया, वही वो कंजम्पशन स्पेस में भी करेंगे। तो क्या होगा कि अल्टीमेटली आपको रिलायंस रेफ्रिजरेटर से लेकर सब रिलायंस ब्रांड की प्रोडक्ट बिकेगी। तो वो एंड टू एंड मैन्युफैक्चरिंग से लेकर फाइनल कंजम्पशन का पूरा वैल्यू चेन को कैप्चर कर लेंगे। तो इसलिए उसको अलग रख, उसका एक स्ट्रैटेजी बनाना बहुत बहुत जरूरी है। यही मैं देख रहा हूँ इस चीज में अंदर उसका स्केल का विजन। जो हमारी डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात है, ये डेमोग्राफिक अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट करने की एक स्ट्रैटेजी है। मुझे लगता है कि ये लॉन्ग टर्म में तो बहुत दूर की बात है, शॉर्ट टर्म में भी इमीडिएट इम्पैक्ट दिखेगा, क्योंकि जिस तरीके से सरकार जीएसटी रिफॉर्म लाना चाहती है, जीएसटी कट होगा तो कंज्यूमर सेगमेंट जितना अफोर्डेबल होगा तो डिमांड इसकी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। अभय अग्रवाल साहब जी, बढ़नी चाहिए। देखिए, आप चाइना के मार्केट से कंपेयर करेंगे तो चाइनीज़ मार्केट है लार्जली डोमेस्टिक ब्रांड्स पे चलता है। मतलब जो एमएनसी ब्रांड्स आए पहले हैं, कॉम्पीट करते हैं, पर अक्रॉस कैटेगरीज आप देखेंगे तो डोमेस्टिक
जो प्रोडक्ट्स है, डोमेस्टिक ब्रांड्स हैं, वो डिक्टेट करते हैं अक्रॉस सेक्टर्स, डिस्क्रिशनरी और नॉन डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स को भी। तो आई थिंक हमारा भी जो मार्केट है, मुझे लगता है अब उसी रास्ते जा रहा है कि एक समय था जब हम कहते थे कि एमएनसी प्रोडक्ट है तो अच्छा है, मतलब उसकी क्वालिटी अच्छी है। अब वो चेंज हो रहा है, अब वो परसेप्शन जो है कि सिर्फ एमएनसी की क्वालिटी अच्छी है, वो चेंज हो रही है। अब लोग ट्राई कर रहे हैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, डोमेस्टिक ब्रांड्स बन रहे हैं, और जो D2C और इंटरनेट की वजह से, यूपीआई पेमेंट की वजह से एक बहुत बड़ा बढ़ावा मिला है डोमेस्टिक ब्रांड्स को। सो आई थिंक ये रिलायंस का भी जो फोकस है उसी डायरेक्शन में है, पर इसको मैं थोड़ा देखना चाहूँगा, इसको डेवलपमेंट होते क्योंकि रिलायंस एक नई चीज़ सीखेगा ये एफएमसीजी प्रोडक्ट्स क्यों, क्योंकि एज अ लार्ज ग्रुप B2B का जेनेसिस रहा है उनका, और एक डीएनए को चेंज करके D2C कंपनी बनना इतना आसान नहीं होता है। कर सकते हैं क्योंकि बहुत एंटरप्रेन्योरियल हैं, पर ये एक देखना होगा जब जैसे-जैसे ये बढ़ेगा, क्योंकि अभी भी जो उनके स्टोर्स हैं, वो एक लार्ज फॉर्मेट स्टोर्स हैं सारे, और डोमेस्टिक जो आप अगर B2C बिज़नेस उनका देख लें, जो जियो का है, वो भी काफ़ी एंटरप्राइज़ फ़ोकस्ड है। तो पहली बार एफएमसीजी में एंट्री ले रहे हैं बड़े पैमाने पे, तो इंटरेस्टिंग रहेगा कि कैसे स्ट्रैटेजी उनकी इवॉल्व करेगी उस स्पेस में। ये बिल्कुल आपने सही कहा कि कैसे आगे बढ़ते हैं ये देखना होगा। दलजीत सिंह साहब, इसमें आप कितना पोटेंशियल देख रहे हैं इस सेगमेंट में? सो लक्ष्मण जी, इनफैक्ट अभी तक जो वर्टिकल्स हैं रिलायंस के, उसमें यही एक वर्टिकल ऐसा है रिटेल जिसमें काफी बड़ा स्कोप बचा है, क्योंकि इसमें अभी काम होना बाकी था। और समहाउ जैसे अभय सर भी बोल रहे थे कि उनका जो डीएनए था वो B2B ज्यादा रहा है, तो शायद उनको समझने में थोड़ा समय ज्यादा लग गया। बट लगता है कि अल्टीमेटली, क्योंकि अपना तो जीडीपी पूरा कंजम्पशन के ऊपर बेस्ड है, और अगर उसमें एक सबसे बड़ी कंपनी जिसके पास इतना बड़ा कैश फ्लो, इतनी बड़ी कैपेबिलिटी है, तो वो देर सवेर से उसको कैप्चर तो कर ही पाएंगे। तो इसमें कोई डाउट नहीं है हमको। हाँ, शायद समय ज्यादा लग गया, उम्मीद थी कि जल्दी कर पाएंगे, बट हो सकता है कि अब वो सीख रहे हैं। और जैसा अभी ये जो फर्स्ट स्टेप बोला कि हम कंसोलिडेट करके इन सबको एक ही कंपनी में करके करेंगे, तो हो सकता है कि मुझे लगता है उसके बाद काफी कुछ इम्प्रूवमेंट आना चाहिए। ये एक सेगमेंट ऐसा है जो अभी पूरी तरह फायर नहीं किया है, तो आई थिंक सबसे ज्यादा पोटेंशियल अभी इसमें ही है। सबसे ज़्यादा पोटेंशियल इसमें ही है। और आपने सही कहा अभी अभय साहब ने कि पहले एमएनसी वाली बात होती थी, अब वैसा है नहीं। इतने सारे लोकल ब्रांड या फिर देसी ब्रांड आ गए हैं जो प्राइस कॉम्पिटिटिव हैं, तो लोग उसको एक्सेप्ट यहाँ पे करते हैं। अभिषेक अग्रवाल साहब, इसमें चूँकि 2-3 चीज़ें एक साथ हो रही हैं। एजीएम में ये ऐलान किया गया, उससे पहले हमने देखा कि जीएसटी के मोर्चे पे एक बड़ी राहत यहाँ पर देने की बात की कि सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी सेक्टर ये है, और जिस तरीके से इंडिया की ग्रोथ का ये फ्यूचर दिख रहा है, तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसा पोटेंशियल है जो आगे चल करके जिस तरीके से रिलायंस को हम लोग जानते थे ऑयल बिजनेस को लेकर के, शायद रिटेल बिजनेस को लेकर भी जानना शुरू करें। ये बिल्कुल ये होने की पॉसिबिलिटी है, बल्कि शायद ऐसा हो सकता है कि 10 साल के बाद शायद आप याद ही नहीं करें कि इसमें ऑयल भी था। बिकॉज जिस तरह का एक्सपांशन ये डिफरेंट डिफरेंट वर्टिकल्स में कर रहे हैं, उस तरह से तो जो कंट्रीब्यूशन है जो उनके बहुत टॉप लाइन एंड एबिटा लेवल पे अगर आप देखेंगे तो बहुत तेजी से बदलता हुआ जा रहा है। अगर आप इसी रिलायंस के 5 साल पहले की अगर आपने एनुअल रेवेन्यूज और एबिटा देखी है, और आज की अगर आप रेवेन्यू और एबिटा देखेंगे, तो आप देखोगे कि कितनी तेजी से इतने बड़े नंबर के साथ आपका जो शेयर है वो कितनी ड्रामेटिकली बदल गया है बिटवीन डिफरेंट बिजनेसेस इंक्लूडिंग रिटेल। सो रिटेल अभी क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग बिजनेस भी रहता है, एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टैब्लिश्ड प्लेयर्स भी हैं कंपेयर टू अदर इनकम्बेंट प्लेयर्स जो जहाँ पे रिलायंस अभी बाकी सेक्टर्स में ऑपरेट कर रहा है। इसलिए यहाँ पे थोड़ा इन्हें चैलेंजेस जरूर आएगा इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी को इम्प्रूव करने में। स्केलेबिलिटी में नहीं आएगा, बिकॉज स्केलेबिलिटी में इंडिया के अंदर में जैसे कि कंज्यूमर ड्रिवन मार्केट है, तो बहुत स्कोप अभी भी हमारे पास है बेहतर पेनिट्रेट करने में। और रिलायंस के पास एक डिस्ट्रीब्यूशन की जो स्ट्रैटेजी रहती है वो एक्सीलेंट होती है, और वहाँ पे वो मास्टर है। तो वहाँ पे मुझे लग रहा है कि ग्रोथ तो ये कर लेंगे, बट जिस तरह का बॉटम लाइन हम बाकी बिजनेस में देख रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा उन्हें चैलेंज होगा, बिकॉज ये थोड़ा टफ फाइटिंग वाली जगह भी होती है। बड़े बड़े प्लेयर्स भी अपने अपने बिजनेस को ऐसे छोड़ेंगे नहीं। तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक बड़ा कंट्रीब्यूशन आने में थोड़ा समय लगेगा, बट यस, दिस बिजनेस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द वेरी बिग बिजनेस फॉर रिलायंस इन फ्यूचर। ये डेफिनेटली ये बात रहेगी।
हाँ, चूंकि यहाँ पे क्या है कि एक इकोसिस्टम पहले से तैयार हो रहा होगा, जियो है, अब बाकी आपके पास एलिमेंट है, तो उससे एक सपोर्ट मिल रहा होता है। इस तरह के जब रिटेल बिजनेस में आप ज़्यादा अपने आप को एग्रेसिव करते हैं तो एक चीज़ और जो मुझे बड़ा दिल को छू गया, वो नीता अंबानी ने जब ये ऐलान किया कि हेल्थ सेक्टर में और ज़्यादा आगे बढ़ करके हम काम करेंगे। उन्होंने खासतौर से रिलायंस फाउंडेशन का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि रिलायंस फाउंडेशन जो मुंबई में 2000 बिस्तरों वाला एक मेडिकल सिटी बनाएगी। अब इस तरह की चीज़ें वाकई लोगों के लिए ठीक है, पैसे की बात, प्रॉफिटेबिलिटी की बात, निवेशक की बात एक है, लेकिन आप आखिरकार हम सब इंसान होते हैं, तो जब ऐसी चीज़ें होती तो लगता है कि नहीं, वाकई वो ऐसी चीज़ है जिसको हर किसी को इसकी ज़रूरत है। तो आप लोग इसको कैसे देखते हैं? सुनील सुवर्णम साहब, आपसे। ये देखिए, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम सीएसआर को गलत तरह से जनरली इतना अलोकेशन करना चाहिए, इतना खर्चा, मगर ये उसके बियॉन्ड जेन्युइनली एक कॉर्पोरेट सीएसआर को उन्होंने अपने जहन में ले लिया है और कर रहे हैं। तो बात यह है कि जब बड़ी दिग्गज ऐसे करते हैं ना, तो वो एक फॉलो ऑन इफेक्ट होता है कि बाकी कंपनी उसके माफिक करने की कोशिश करती है। तो मेरा एक लीडरशिप इस जगह में दिखा रहे हैं, वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं मानता हूं, क्योंकि जब से अमीर लोग, जब वो बिल गेट्स की तरह, देखिए जितना उनका बिल गेट्स फाउंडेशन काम करता है सीएसआर एरिया में पूरे वर्ल्ड में, वैसे ही इन्होंने भी अपना एक विजन सोचा है कि हमें गिव बैक टू सोसाइटी करना है, और ये एक बहुत अच्छी डायरेक्शन है। और इसीलिए उन्होंने अलग इसको कंपनी से अलग करके उनके वाइफ को दिया है, नीता जी को दिया है कि ये आप आगे लेकर बढ़ा दिए। और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक जो कहते हैं ना पब्लिसिटी के लिए भी, ये एक जो कहते हैं ना, जब खाली ग्रीड ड्रिवन कॉर्पोरेट नहीं है, हम सोसाइटी को भी आगे हमारे साथ बढ़ा के लेके जाना चाहते हैं। ये मैसेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि अगर हमारा समाज, जिस सोसाइटी में हम हैं, जिस सोसाइटी में हम काम कर रहे हैं, वो अगर संपन्न है तो हमारे लिए भी अच्छा होता है उस संपन्न सोसाइटी में अपने आप को ग्रो कर पाना। वहाँ पे कोई अड़चने हैं तो फिर ये अड़चने, ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल आइसोलेट होकर किसी साइलोज में बैठे हुए हैं, हम ग्रो करें और बाकी चीज़ ग्रो ना करें या संपन्न ना हो तो हमें दिक्कत होगी। ये एक सामान्य सिद्धांत है। मुझे लगता है कि उसकी तरफ भी एक बड़ा कदम इसको माना जा सकता है। दलजीत सिंह कोहली साहब, ये कितनी बड़ी राहत होगी या फिर कितना बड़ा कदम कहेंगे कि इस तरह के मेडिकल सिटी, हॉस्पिटल की सुविधा का मुहैया कराया जाना? बहुत जरूरी है लक्ष्मण जी। हम सब जानते हैं कि कितना हमारे यहाँ स्केर्सिटी है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की, और उसमें अगर एक बहुत बड़ी कंपनी आकर के आगे आकर के और अच्छा इन्वेस्टमेंट करके उसको एक बड़ा स्केल पे बना सकती है, तो वो सबके लिए बहुत फायदेमंद होगा, सब पूरे समाज के लिए उसकी बेनिफिट होगी। मैंने खुद ने देखा है इनका ये जो मुंबई में जो HN सेंटर है, जो पहले कोई और ट्रस्ट चलाता था, अभी रिलायंस चलाता है, तो रिमार्केबल डिफरेंस मुझे दिखा पिछले 4-5-7 साल में। और द क्वालिटी ऑफ मेडिकल सपोर्ट दैट दे गिव, जो डॉक्टर्स हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो आई थिंक अगर इसी तरीके के जो दिग्गज लीडर्स हैं, जो बड़ी कंपनियां हैं, अगर वो सपोर्ट करेंगी ये इंफ्रास्ट्रक्चर को, इसकी तो रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा हमारे देश में है ही, हम सबको पता है कि कितना बुरा हाल है। और जस्ट इंसिडेंटली हॉस्पिटल एक ऐसा सेक्टर है जिसमें आज की डेट में जो लिस्टेड कंपनीज है वो 99% जो है वो PE ओन्ड है, प्राइवेट इक्विटी ओन्ड है। और उससे आप समझ सकते हैं कि उनका मोटिव ही क्या है। तो उन सबके वैल्यूएशन भी हम देख रहे हैं कि क्या कहाँ जा रहे हैं। तो वो एक अलग चीज है, बट आई थिंक ये एक ह्यूमन एंगल बहुत जरूरी एंगल है। और जब आप इतने बड़े देश के इतने बड़े लीडर होते हो, एक बड़ी कॉर्पोरेट सिटीजन हो, तो आपने जो अपनी जिम्मेदारी को समझा, आई थिंक वो बहुत सराहनीय है। हालांकि मुझे लगता है कि ये बाकी लोगों के लिए भी एक ये होता है कि चलो इस कंपनी, इतने बड़े लीडर ने ये कदम उठाया, तो बाकी लोगों के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत बनता है। अभय अग्रवाल साहब। बिल्कुल। और ये एक चीज़ रिलायंस फाउंडेशन की आपने बात करी, मैंने काफ़ी क्लोजली देखा है रिलायंस फाउंडेशन को, क्योंकि कुछ मेरे दोस्त हैं जो वहाँ पे सीनियर इन्वॉल्व हैं। तो हेल्थ एक तरफ है, पर दूसरी तरफ जो उनका कमिटमेंट है स्पोर्ट्स डेवलपमेंट में और एजुकेशन में एट ग्रास रूट लेवल एनजीओज के थ्रू, वो भी रिमार्केबल है। तो आई थिंक सिर्फ हेल्थ ही नहीं, लक्ष्मण जी, मैं कहूँगा कि ऐसे 3 बड़े स्पेसेस हैं जहाँ पे उन्होंने काफ़ी कमिटमेंट किया है और काम किया है, और आई थिंक उसका फ़ायदा भी दिख रहा है हमें। तो आई थिंक उसी को वो स्केल अप करेंगे, हेल्थ, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, काफ़ी बड़ी बात होगी पूरी सोसाइटी के लिए। क्योंकि आप एक इंक्लूसिव ग्रोथ की हम बात करते हैं, वो सिर्फ सरकार के ऊपर नहीं छोड़ सकते कि सरकार ग्रास रूट पे डेवलप बिल्कुल। करे और इंडस्ट्रियलिस्ट अपना काम करे। तो आई थिंक एक बहुत बड़ा कमिटमेंट है
और जो इनकी एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी है वो सबने देखी है, तो मुझे लगता है कि उन कॉजेस को भी वो उसी तरह एक बड़े लेवल पे लेके जाएंगे। बिल्कुल, आपने स्पोर्ट्स की बात कही, इस पे भी उन्होंने कहा कि 2036 में जो ओलंपिक होना है उसकी मेज़बानी करनी चाहिए भारत को, इसका भी समर्थन यहाँ पर किया है। तो सिर्फ बिजनेस ही नहीं बल्कि एक सोशल सेक्टर में भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं और जिसका असर हम लोग देख सकते हैं, चारों तरफ देखने को मिले। आप सही मेहमानों ने समय निकाला हमारे लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज़ अड्डा में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए CNBC आवाज़। Co-powered